Hey guys, what's up? So today we're going to discuss the words, phrases, idioms so that आप अपनी vocabulary boost कर पाओ, and it will be based on the 8th February 2017 Hindu. We will discuss 100 words and idioms and phrases, and as मैंने आपको पहले भी बहुत बात बताया है कि there are 3000 words roughly which you need to understand for cracking various government exams, and we will start with the 100 today. So let's get started. First word is the mandate. Mandate means like mandate of the people, basically means assign authority to. For example, the government has given mandate to the civil servants to do that, and people have given mandate to Narendra Modi to rule this country. ठीक है, मैंडेट मतलब होता है कि आपने चूज करके किसी को असाइन करी अथॉरिटी. दूसरा होता है रेंस. रेंस मतलब एनी मीन्स ऑफ कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, रेंस ऑफ द हाउस लाइज इन द मदर्स हैंड, या फिर नरेंद्र मोदी has the reins of the BJP government. So basically any means of control. Reins is a type of control. Then you have cadre. Cadre means a small unit or a cell. So for example, health cadre of the party constitutes of 12 people and is responsible for vaccination. या फिर मीडिया cadre of the party is responsible for public relations. समझ रहे हो? It is basically a small unit or a cell. Similarly, cadre can also be like a, for example, this IS officer belongs to MP cadre, which means that he will function in the MP. So it is a small unit. Downtrodden means like the poor, downtrodden basically means oppressed people. For example, there are a lot of Nigerian children who are so poverty stricken, they are really downtrodden, they do not have access to health care. ठीक है, that is how you use it. ठीक है. Then graft means there are two three meanings, but in case of the Hindu, it will be meaning of bribery. For example, the following MP was alleged to take a graft to pass the bill या फिर टू डू एन इलीगल वर्क. ठीक है, ग्राफ्ट का मतलब होता है ब्राइब लेना या फिर कोई मतलब गलत चीज़ एक्सेप्ट करना टू डू अ फेवर. ठीक है, और दूसरे ग्राफ्ट का मतलब होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट्रा. सैबोटाज या साबोटाज, इसका मतलब होता है डेलिबरेट एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन. साबोटाज, so that is how they pronounce it in foreign countries, especially UK and US. So basically railways track were sabotaged. So it means deliberate act of destruction. So the people, let's say आपका भाई आपको पढ़ने नहीं दे रहा, you can say are you trying to sabotage my preparation. या फिर मान लो कि terrorist sabotaged the airport security so that they can hijack the plane. ठीक है, सो देर इज अ डेलिबरेट एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन. देन अबॉर्टेड का मतलब जैसे बेबी अबॉर्ट कर दिया, किसी की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर दी. सो बेसिकली इट मीन्स टर्मिनेटेड और एंड बिफोर द कंप्लीशन. सो फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी अबॉर्टेड इट्स मिशन बिकॉज ऑफ स्नो. ठीक है, एक ये मतलब हो गया इसका. या फिर टेररिस्ट अबॉर्टेड देयर मिशन वंस हाई अलर्ट वॉज पास्ड इन द कंट्री, ऐसा कुछ हो गया. ठीक है. देन यू हैव डिजेनरेटिव, लाइक रेयर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, लाइक इसमें जो भी होगा मतलब धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज बीइंग अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, इट विल kill your nerves slowly and you will lose sensation in your fingertips and toes. So basically gradual deterioration or decline. Then you have pauperization of basically making someone poor or impoverished. Britishers exploited the tribals so much they literally, मतलब समझ गए ना मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है. सो पॉपुलराइजेशन ऑफ ट्राइबल्स वाज डन बाय दी वेरी वेरी रूथलेस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, ऐसा कुछ बोल सकते हो. फीनिक्स एक पक्षी होता है स्पेशली इन इजिप्ट. तो वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रीबर्थ आफ्टर बीइंग इन अ वेरी बैड सिचुएशन. सो यू ही राइजेस फ्रॉम इट्स ऐश. उसके आग लगा दो वो जल जाएगा, बट इट विल राइज फ्रॉम इट्स ऐश. So basically rise like a phoenix. For example, Yuvraj Singh got a cancer, but he overcome it and he scored 150 runs on his comeback and he rose like a phoenix. समझ में आ गया. Then anecdote का मतलब होता है evidence नहीं है. It is not evidence, it is not 100% correct, but it is short interesting account of real events. जैसे लोग नहीं बोलते कि वहाँ पे रात के बाद मत जाना, वहाँ पे भूत है. सो दिस इज कॉल्ड एज एनेक्डोटल एविडेंस. हो सकता है भूत है, हो सकता है नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट लोकल एविडेंस या फिर शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं. ठीक है, जैसे कोई अफ्रीकन ट्रैवलर था, वो बोला कि लोकल पीपल बिलीव दैट देयर इज अ मॉन्स्टर लिविंग हेयर, दैट दीज आर कॉल्ड एज एनेक्डोट्स. या फिर कोई आपका अच्छा दोस्त था तो उसके बारे में उसकी मम्मी बोल रही है कि मतलब ये तो बहुत पढ़ता था या उस टाइप के. दीज आर कॉल्ड एज एनेक्डोट्स. Then renegade means a rebel, one who defies convention or a rebel. For example, any artist who writes against the government can be labeled renegade. है ना, यूजुअली इट इज यूज फॉर सोल्जर. फॉर मंगल पांडे कैन बी कॉल्ड अ रेनेगे. समझ रहे हो, रेनेगे, इट्स नॉट कॉल्ड एज रेनेगेड, इट्स अ रेनेगे. सो वन हु डिफाइज कन्वेंशन और हु इज अ रेबल.
देन स्क्रूलियस रिमार्क्स तो मतलब होता है ऑब्यूसिव एंड ऑफेंसिव, जैसे कि आजकल हमारी मीडिया में करते हैं लोग. तो स्क्रूलियस मीन्स अब्यूसिव, वेरी वेरी ऑफेंसिव रिमार्क्स, किसी का इंसल्ट करना, किसी को बेसिकली किसी की बेइज्जती करना. एक्सॉर्बिटेंट मीन्स कि ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑनियन प्राइसेस वर एक्सॉर्बिटेंटली हाई. इसका मतलब होता है रेट्स, फी, प्राइसेस दे आर वेरी हाई, अनरीजनेबल. एंट्री इनटू इंडिया इज एक्सॉर्बिटेंटली कॉस्टली. बेसिकली Indian medical school rather. So entry into Indian medical school is exorbitantly costly or exorbitant. The price, the capitation fee जो इसको बोलते हैं, that is exorbitantly high. Then cache of documents animation, it is a secret storage space or a hoard. So basically it can be a cache of documents, cache of ammunitions, etc., etc. So it is a secret place where you hold everything. Then you have moonshine. So basically illegal or illicit. So basically moonshine is a type of alcohol which is prepared especially in United States of America. में एक दारू होती है एक तरह की. So जब भी मतलब लोगों को प्रोहिबिशन एरा में काफ़ी बनती थी moonshine, अगर आपको नहीं पता हो तो. So that is it. कैश का मतलब हो गया कि माई डैड इज हाइडिंग अ कैश ऑफ एम्यूनिशंस, फॉर एग्जाम्पल गन्स, ये सब अंडर द बेसमेंट. ठीक है. देन यू हैव पेडेस्ट्रियनाइजेशन of Connaught Place. For example, Connaught Place में there are no vehicles allowed, only pedestrian are allowed who can walk on foot. So pedestrian मतलब होता है जो फुटपाथ पे जो चलते हैं उनको pedestrian बोलते हैं. जो दो people are on foot which are called as pedestrians. डेलीगेशन का मतलब दो हो सकता है. डेलीगेशन का मतलब हो सकता है an IAS officer is delegating his work to his subordinate. So that is called as giving the work to the other person. डेलीगेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, अ डेलीगेशन ऑफ फार्मर इज विजिटिंग द यूनियन गवर्नमेंट्स होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू गिव देयर ग्रीवेंसेज. ठीक है. या फिर अ डेलीगेशन ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ यूरोप आर विजिटिंग इंडिया और इंडियन पार्लियामेंट. रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी. फॉर एग्जाम्पल, एक एशेस ट्रॉफी होती है तो उसकी रेप्लिका हमेशा एक्सचेंज होती रहती है. तो रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी. और रेप्लिका ऑफ एनी थिंग, इट कैन बी ऑफ एनी थिंग. ठीक है. गांधी जी स्पेक्स की एक रेप्लिका बिक सकती है. एनी थिंग, इट्स नॉट द ओरिजिनल, इट्स अ कॉपी. देन यू हैव एग्जाम्पलरी. एग्जाम्पलरी का मतलब होता है फाड़ू परफॉर्मेंस, ऑसम परफॉर्मेंस. So it is worthy of imitation or it is like it can be modeled upon. So Virat Kohli's performance was so exemplary that he is considered the best batsman in the world. Abducted का मतलब होता है kidnap, ransom. So this is a very common word. Then you have trespass. तो लिखा रहता है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कि trespassers are not allowed. So basically entering unlawfully, मतलब without your right you are entering somewhere. So that is called as trespass. So transgression का मतलब होता है कि जैसे चाइना केम इनटू इंडियाज टेरिटरी इन 1962. So it means violation or overstepping into. So please do not transgress your boundaries. You are my friend and stay like that. ठीक है. So then you have scores of curious onlookers. So scores का मतलब होता है huge large numbers. तो यहाँ पे अलग मतलब है scores का. So basically तमाशा देखने वाले लोगों को scores भी बोल सकते हो. So scores means large numbers. Then you have implicated. So for example, somebody is implicated in the robbery case who was involved. ठीक है. तो Supreme Court has implicated 5 people in the XYZ rape case या XYZ robbery case. ठीक है. पिल्फरेज का मतलब होता है, आपने राशन की दुकानों में आपने काफ़ी सुना होगा कि जब कैरोसिन की ट्रक्स निकलते हैं तो वो पूरा का पूरा कैरोसिन मार्केट में, मतलब मार्केट से राशन की दुकान पे नहीं पहुंचता, बीच में इधर उधर चोरी हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट. सो पिल्फरेज ऑफ फंड्स, पिल्फरेज ऑफ राइस, पिल्फरेज ऑफ कैरोसिन, पिल्फरेज ऑफ शुगर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन स्नैग का मतलब होता है अनसीन ऑब्स्टेकल. सो इंडियन आर्मी डिस्पाइट हैविंग टेक्निकल स्नैग्स कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन और कंप्लीटेड इट्स सर्जिकल स्ट्राइक. ठीक है. 11th आवर का मतलब होता है नोटिफाइंग एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. जैसे मान लो कि मेरे भैया की शादी थी 14 फरवरी को, तो मैं अगर 1 घंटे पहले आपको इनवाइट करूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज इनवाइटिंग एट द 11th आवर. सो लास्ट मिनट और लास्ट पॉसिबल जो चीज़ हो सकती है. ठीक है. सो लॉगर हेड्स का मतलब होता है अपोजिशन, डेडलॉक. सो फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी एंड कांग्रेस वर एट लॉगर हेड्स व्हेन इट कम्स टू जीएसटी बिल. ठीक है. स्टूडेंट्स आर एट लॉगर हेड्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू सुसाइड इशूज. So opposition or deadlock, a situation in which no progress is being made, that is called as loggerheads. Then you have illustrious, मतलब awesome career. Sachin Tendulkar had an illustrious cricketing career and that is why he has been conferred with Bharat Ratna award. That is called as past or career. It's famed, widely known or a glorious. Unconscionable bargain. Unconscionable, so basically something means lacking conscience, unacceptable, unreasonable. So this is a phrase which was there in newspaper of 8 February 2017. So basically lacking conscience, unacceptable and unreasonable. Then you have martial valor, that is courage of warrior, courageous, heroic, etc. So that is called as a martial valor. Then you have remission. Remission means
बेसिकली पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में रेमिशन यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली एब्जॉल्व और लेट गो फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इन द पनिशमेंट. सो प्रेसिडेंट कैन लेट गो ऑफ योर एंटायर पनिशमेंट. सेलेस्टियल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्काई, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है. अ मीटियोर इज अ सेलेस्टियल बॉडी एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन यू हैव बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है कि केयरलेस और डिस्ट्रक्टिव इन अ डेलिकेट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, द सर्जन वॉज ड्रंक एंड हिज हैंड्स वर शिवरिंग, he was like a bull in a china shop. So basically surgeon is not supposed to be careless, he is not supposed to be destructive in a delicate situation. So it's an idiom, bull in the china shop, ये याद रख लेना. Then you have elephant in the room. इसका मतलब होता है कि एक obvious problem no one wants to discuss, like there is a lot of gender bias at workplace but nobody wants to discuss, so people don't want to discuss such stuff. So it is called as the elephant in the room. For example, Indian families में 90s में HIV AIDS वगैरह डिस्कस करना बहुत ही टैबू माना जाता था. That is called as elephant in the room. दैन डायबॉलिकल का मतलब होता है बहुत ही विकेट, बहुत ही इविल. सो द फादर किल्ड हिज ओन सन, ही हैड अ डायबॉलिकल प्लान. या फिर सन किल्ड हिज ओन फादर, ही हैड अ डायबॉलिकल प्लान, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू माइट बी हियरिंग अ रिलेटिव रेप्ड देयर ओन रिलेटिव्स, सो दैट इज डायबॉलिकल, दैट इज विकेट, दैट इज इवलिश, घिनौना जिसको बोला जा सकता है. होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग एनी ह्यूमन बीइंग, जिसको मर्डर भी बोला जाता है आम भाषा में. देन रेजीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ किंग. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंग्लैंड के किंग को मार देता है तो दे आर कॉल्ड एज किंग स्लेयर्स, और दे आर द एक्ट इज कॉल्ड एज रेजीसाइड, द पर्सन इज कॉल्ड एज किंग स्लेयर. पैट्री का मतलब पापा एंड फ्रेटरी का मतलब भाई, ठीक है. सो अमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है. अमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. सो a lawyer who advises the court on what is right and what is wrong, especially in the murder case or other cases. It can be for any cases, not, but the phrase was used in the murder case. मर्की का मतलब होता है गंदा, धब्बेदार, टर्बिड, डार्क, मडी, जो क्लियर नहीं हो, बेसिकली जो क्लियर नहीं हो. सो फॉर एग्जाम्पल, देयर मैरिज आर इन मर्की, ठीक है, वाटर्स. सो मतलब अब उनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, वो मतलब अनक्लियर है कि क्या होने वाला है, डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड टर्बिड, डार्क, मडी, अनक्लियर. Then you have demise. For example, Jayalalitha, the chief minister of Tamil Nadu, she passed away. So demise of Jayalalitha, so it is also called as death. वेल का मतलब होता है, आपने मुस्लिम औरतों को देखा होगा पहनते हुए, जिसको नकाब भी बोलते हैं. So it is a membrane which is used as covering or concealment. So basically it can be used as English phrase also, कि veil of secrecy. अगर कोई आपसे राज छुपा रहा है, so then you can use this phrase veil of secrecy. Then angst का मतलब होता है एंजाइटी, या थोड़ा सा जिसको बोलते हैं अस्थिरता, मतलब कुछ ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है आपको कि कुछ मतलब आपके अंदर दबा हुआ है. सो एंगस्ट अमंग मासेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंजाइटी एक्सेट्रा. नॉनाजेरेनियन, ऑक्टाजेरेनियन, सेप्टाजेनेरियन, ये सिंपल वर्ड्स होते हैं. ऑक्टा का मतलब 8, नॉना का मतलब 9. सो ग्रैंड फादर, इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रैंड मदर ऑल्सो, 90 to 99 ईयर्स ओल्ड. सो जो भी होगा उसको नॉनाजेनेरियंस बोला जाएगा. देन यू हैव स्टेप इनटू द शूज. बेसिकली अखिलेश यादव स्टेप्ड इनटू हिज फादर शूज एज सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश. So basically you take up the role from the other person. Then you have adroitly. Adroitly का मतलब होता है skillfully, adeptly. Adeptly का मतलब होता है skillfully कुछ काम किया आपने जो कि लोग देखते रह गए. So basically he adroitly rallied his supporters and won the elections. Travels का मतलब होता है huge exertion, hard work, बहुत ही किसी ने मेहनत करी हो, किसी ने टॉयल किया हो, तो ट्रेवल्स बोलते हैं उसको. एंड फाइनली यू हैव कॉन्फिडेंट, एंड इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट का मतलब होता है इसमें आप राज बताते हो जिसको, समवन इनटू होम प्राइवेट मैटर्स आर कन्फाइडेड, किसी को आप अपने राज बताते हो, आपने जो भी डार्केस्ट सीक्रेट अगर किसी को बताते हो, सो द पर्सन विल बी कॉल्ड एज योर कॉन्फिडेंट. फोरे का मतलब होता है कुछ नई चीज़ चालू करना, कोई नई हॉबी परस्यू करना. सो ही फोरेड इनटू फैशन इंडस्ट्री, ठीक है. सो बेसिकली इट मीन्स एंटर इनटू और वेंचर. एंड विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑल्सो आफ्टर दिस. अरीना का मतलब होता है अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, मेडिसन स्क्वायर गार्डन इज अ ग्रेट अरीना फॉर बॉक्सिंग. इट इज एन एरिया फॉर स्पोर्ट्स. अरीना कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर other things as well, but basically it's a particular environment or an area for a sports. It can be for wrestling, cricket, etc. Then juncture is a critical point in time where a decision has to be made. For example, Sardar Vallabhbhai Patel was at a critical juncture and he decided to unite India by iron fist, ठीक है. So that is called as a juncture. So critical juncture होता है a point of time where a decision has to be made which can change the entire history and entire future. So thank you for watching this. We'll continue the part 2. Have an awesome day. Hey guys, what's up? So we continue the part 2 of this video series where we're talking about the words, phrases and idioms. और हम बात करेंगे इनके मीनिंग्स की और इनका क्या
मतलब कॉन्टेक्स्ट होता है, किस तरीके से इनको आप सेंटेंस या वाक्यों में यूज़ कर सकते हैं। और ये द हिंदू 8 फरवरी 2017 पे बेस्ड है। दिस इज द पार्ट 2, इस वाले आप पार्ट 1 देख लीजिए। सो अनएनविएबल, एनवी का मतलब होता है जेलसी या ईर्ष्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। अनएनवी का मतलब होता है जो जेलस नहीं कर पा, मतलब समझ रहे हो। सो इट इज़ एन अनडिजायरेबल पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, which is incapable of arousing jealousy or envy. So he could not clear his exam in 6 attempts. So he is at an unenviable position. But Virat Kohli has scored 27 या 28 ODI century and he is at an enviable position. समझ गए। Then second is carved out a niche. इसका मतलब होता है create a position for oneself. For example, Vriddhiman Saha has carved out as a niche as the number 1 test wicket keeper in India team. या फिर हार्दिक पांड्या हैज कार्व्ड आउट अ नीश एज एन ऑलराउंडर, या आर अश्विन हैज कार्व्ड आउट अ नीश एज द बेस्ट स्पिनर इन इंडियाज टीम। कोहोर्ट का मतलब होता है सपोर्टर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो अ कोहोर्ट ऑफ कांग्रेस सपोर्टर्स वर वेहेमेंटली अपोजिंग द बीजेपीज डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, कोहोर्ट का मतलब होता है सपोर्टर्स या ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इट कैन बी ऑफ सपोर्टर्स, इट कैन बी ऑफ एनीबडी। कोहोर्ट ऑफ हनीबीज भी हो सकता है, कोहोर्ट ऑफ भैंस भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, इट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी ऑफ सपोर्टर्स, इट कैन बी ऑफ ऑडियंस, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। इनकम्बेंट का मतलब होता है करंटली हु इज होल्डिंग द ऑफिस। सो फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इनकम्बेंट पीएम, ठीक है, या नरेंद्र मोदी इज इनकम्बेंट पीएम, डोनाल्ड ट्रंप इज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। फिर होता है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है मैन्यूवर या मूव या टैक्टिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिज रिस्की गैम्बिट इन दी वॉर डिड नॉट पे ऑफ, मतलब आपने रिस्क लिया लेकिन पाकिस्तान कारगिल का युद्ध हार गया 1999 में, तो उसका जो गैम्बिट था वो रिस्की था बट इट डिड नॉट पे ऑफ। फिर होता है असीडुअसली, मेरे पीछे बोलना, असीडुअसली, इसका मतलब होता है केयर और परसिस्टेंस के साथ। सो हिज असीडुअस प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन gave him the top 20 rank. So basically he worked a lot with care and persistence, he worked assiduously, and that is why he could succeed. Then you have serendipitous, that is shift in the circumstances. serendipity हो सकती है, किसी के साथ अर्थक्वेक आ गया, उसके पूरे circumstance चेंज हो गए, ठीक है, it means, so that will not be a serendipity in that sense. बट सेरेंडिपिटी मीन्स कि जैसे पेनिसिलिन ढूंढ लिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी की हेल्थ केयर ही चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड एज अ सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी, क्योंकि वो गलती से डिस्कवर हुआ था, उन्होंने जानबूझ के डिस्कवर नहीं किया था। सो ही वॉज लकी और फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी। केट बेकिनसेल की मूवी भी एक सेरेंडिपिटी। माकियावेलियन मैकिनेशंस का मतलब होता है कि बेसिकली माकियावेली एक इटली के थिंकर थे 15-16 सेंचुरी में। सो बेसिकली अ प्लॉट टू अचीव सिनिस्टर और इवल इंटेंट एंड एंड्स, किसी भी तरीके, उन्होंने बुक लिखी थी द प्रिंस, तो किसी भी तरीके से आपका गोल अचीव होना चाहिए बेसिकली। सो दैट इज कॉल्ड एज अ माकियावेलियन पॉलिसी या फिर गोल या फिर मूव्स। रेपेशियस, it means excessively greedy, it can be used for government, for example who are involved in a lot of corruptions, scams, etc. So that can be a rapacious government or a rapacious administration. इनसरमाउंटेबल यूजुअली एक ऑब्स्टेकल के लिए टर्म यूज़ किया जाता है, विच मीन्स अनकनकरेबल, इम्पॉसिबल। सो क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट in 1920s was considered an insurmountable obstacle because there were not enough equipments. समझ रहे हो? Going to space before 1950s was considered insurmountable because we did not have a re-entry technology. भाई ह्यूमन बींग्स को छोड़ के थोड़ी आओगे, वापस उधर लाना। So that is called as insurmountable या unconquerable या impossible. या cracking civil service examination by 1 month of study is an insurmountable task. फिर देखते हैं जेनुफ्लेक्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बेंडिंग नीज इन रेवरेंस। एक तो ये हो गया आप झुक गए, जैसे मान लो कि आप नमाज अदा कर रहे हैं तो आप जेनुफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्पाइनलेस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अ मिनिस्टर्स रिलेशनशिप विद हिज लीडर, ठीक है। स्पाइनलेस है बेसिकली आप जिसको बोलते हैं बिल्कुल ही लेट गए उनके सामने, मतलब आप घुटने टेक दिए या फिर बिल्कुल ही प्रोस्ट्रेट कर रहे हैं जिसको बोला जाता है। सो दैट कैन बी अ स्पाइनलेस पर्सन ऑल्सो। लॉडेबल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा काम किसी ने किया है, वर्दी ऑफ हाई प्रेज, कि दैट बॉय वॉज डिसेबल्ड बट येट ही रैन द 100 मीटर रेस ऑल्दो ही डिड नॉट विन बट हिज एफर्ट्स वर लॉडेबल। समझ रहे हो? बहुत ही हाई प्रेज की वर्दी है जिसकी, बहुत अच्छा काम किया है किसी ने, आप उसको प्रेज वर्दी काम किया है। इसके बाद है मूट। मूट का मतलब है कि विच इज ओपन टू आर्ग्यूमेंट और डिबेट, मूट क्वेश्चन, ठीक है, जिस पे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कन्वल्स्ड का मतलब होता है
जिसको मिर्गी के दौरे बोलते हैं उसको कन्वल्जन बोला जाता है. सो समथिंग विच इज डिस्टर्ब्ड वायलेंटली. फॉर एग्जाम्पल रोमानिया इज कन्वल्स बाय प्रोटेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. डिस्टर्ब्ड वायलेंटली. ठीक है. तो उसके बाद होता है नेफेरियस. नेफेरियस का मतलब होता है डायबॉलिकल या विकेड या ईविल, या फिर बहुत ही शैतान वाला काम करना, या बहुत ही घृणात्मक काम करना, बहुत ही बुरा काम करना. नेफेरियस एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान वर इन्वॉल्व इन नेफेरियस एक्टिविटीज़. ठीक है. देन लेट्स सी ऑस्टेंसिबली. ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, बेस्ड ऑन द अपीयरेंस बट इनसाइड द पर्पस ऑफ एक्ट में बी डिफरेंट. मतलब कि आपको किसी ने फूल दिए हैं, मतलब वो आपको लगता है कि वो आपका दोस्त है, बट ही इज़ डूइंग जस्ट टू गेट अ फेवर. ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन द अपीयरेंस या अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट कुछ और है, बट द इनसाइड द एक्ट ऑफ द पर्पस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है. रिसेंडेड का मतलब होता है कैंसिलिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर वॉज रिसेंडेड. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड एज कैंसिलिंग. रिवोक्ड का मतलब भी होता है कैंसल. ठीक है. So both of these are absolutely clear to you. So you need to know these terms. Rescinded या revoked, both of them means cancellation. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने सिक्योरिटी डिटेल दी, लेकिन अभी वो रिसेंड कर ली गई है, रिवोक कर ली गई है. प्रोप्राइटी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एक्ट. फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, किसी ने कोई मेडिसिन बनाई, किसी ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, किसी ने कोई बल्ब बनाया, सो दैट इज इज और हर प्रोप्राइटी प्रॉपर्टी. ठीक है. रिविटिंग, मेरे पीछे बोलना. रिविटिंग इसका मतलब होता है एनग्रॉसिंग, ग्रिपिंग, विच कैन होल्ड अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल एन XYZ मूवी इज रियली रिविटिंग. बहुत ही अच्छी मूवी बनाई यार, 3 Idiots. इट वॉज रियली रिविटिंग, इट वॉज रियली एनग्रॉसिंग, इट वॉज रियली ग्रिपिंग, इट वॉज होल्डिंग माई अटेंशन. रिविटिंग परफॉर्मेंस बाय अ बैले डांसर, या रिविटिंग परफॉर्मेंस बाय पंडित रविशंकर. इसका सिनर्जी. सिनर्जी का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल Ashwin and Ravindra Jadeja were working in a synergy to plot the demise of English cricket team. या फिर Air Force and Army were working in synergy against Pakistan in the war. ठीक है. अप्रेजल का मतलब होता है एक्सपर्ट असेसमेंट. किसी भी सिचुएशन का, मान लो अर्थक्वेक आया, फ्लड आई, कोई सुनामी आया, तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई उसके अप्रेजल के लिए कि क्यों आया, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता था, फ्यूचर में उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा. या फिर किसी एम्प्लॉय का अप्रेजल हुआ है, ठीक है, कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कि उसको फायर करना है, कि उसको हाइक देना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर उसके बाद है कोजेंट. कोजेंट का मतलब होता है पावरफुली परसुएसिव. मतलब कि बहुत ही किसी ने औसम काम किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कोजेंट, दैट इज पावरफुली परसुएसिव. देन कार्डिनल. कार्डिनल का मतलब होता है फंडामेंटल और द असेंशियल कंपोनेंट. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज माई कार्डिनल वैल्यू दैट आई विल नेवर बी इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस. तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जान भी चली जाएगी, तो भी आप ये कार्डिनल, क्योंकि आपकी वैल्यू है कि आप करप्ट नहीं बनना है, आपको ऑनेस्ट बनना है. या फिर कोई बोल सकता है मैं कार्डिनल वैल्यूज हार्ड वर्क, तो आप कभी लेजी नहीं रहोगे लाइफ में. उसके बाद आते हैं आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट का मतलब होता है वन हु कैन पुट इनटू वर्ड्स क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल कल मैं शशि थरूर सर के साथ था, तो ही इज़ वेरी आर्टिकुलेट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ. जो वो दिमाग में सोच रहे होते हैं वही ज़बान पे ले आते हैं. वैसे ही मोदी जी हैं हमारे. व्हेन ही स्टार्ट्स टू स्पीक ही ग्रैब्स द अटेंशन एंड ही टेल्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ फीलिंग. जो भी उनके मस्तिष्क में चल रहा होता है, जो भी उनके हृदय में चल रहा होता है, वो ज़बान पे आ जाता है, वो जिह्वा पे आ जाता है, और वो बाहर निकल जाता है. ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कि लिव अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, लाइक गांधी जी, जिसको बोलते हैं एसेटिक. एसेटिक का मतलब होता है साधु संत जिसने सोसाइटी को रिनाउंस कर दिया है. ठीक है. एसेटिक. ठीक है. और सिंपल लिविंग. ठीक है. सो ही इज जस्ट डूइंग अ सिंपल लिविंग. देन यू हैव एडवर्सरी. एडवर्सरी का मतलब होता है एनिमी. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज एन एडवर्सरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वॉर. इनफ्रिंज का मतलब होता है somebody who's encroaching, somebody who's impinging, somebody who's violating. बेसिकली जो आपका हनन कर रहा है उसको इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ somebody is locked in his house. देन वेहेमेंट का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही फोर्सफुल किसी चीज़ का अपोज किया जाए, उसको बोलते हैं वेहेमेंट अपोजिशन. ठीक है. एक्स कम्युनिकेटेड का मतलब होता है कि किसी को एक्सक्लूड कर दिया है, किसी को आउस्ट कर दिया है, किसी को बाहर निकाल दिया है, किसी को सोसाइटी से निकाल दिया है, किसी को देश से निकाल दिया है. सो इज एक्स कम्युनिकेटेड फ्रॉम इंडियन आर्मी, इज एक्स कम्युनिकेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग कास्ट. देन यू हैव प्रिपोस्ट्रस. प्रिपोस्ट्रस का मतलब होता है नॉन सेंसिकल. सो फॉर एग्जाम्पल क्लेमिंग दैट माई लाइफ इज़ वर्थ 100 करोड़ इज़ अ प्रिपोस्ट्रस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप कुछ करते धरते हो नहीं. या फिर क्लेमिंग दैट इंडियन आर्मी
डिड नॉट डू, मतलब कुछ करप्ट एक्टिविटीज़ हैं या कुछ है, विदाउट एविडेंस इज अ प्रपोस्टरस प्रपोजिशन. इट इज़ बेसिकली अ नॉन सेंसिकल थिंग. इट इज़ अ ल्यूडिक्रस. ल्यूडिक्रस का मतलब होता है मजाक का पात्र बनने लायक, बिल्कुल ही एब्सर्ड बात है, इडियोटिक है. एंड इट इज़ एन अलार्मिंग. प्रपोस्टरस यूजुअली लीड्स टू अलार्म. एमिकेबल अभी बताया था, एमिकस क्यूरी. एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली या पीसफुल सेटलमेंट. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द डिवोर्स द कपल सेपरेटेड एमिकेबली एंड देयर वॉज नो इल विल और हार्श सेंटिमेंट्स. बेसिकली आप आराम से पीसफुली काम कर रहे हो. देन पॉन्टियस पिलाटे, इसका मतलब होता है यूज्ड for a ruthless dictator like scenario. It can be used for, let's say, Hitler. It can be used for other people, etc. Then sacrificing the tribal women's right at the altar. So altar का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर सेक्रीफाइसेस. पुराने ज़माने में बलि जिसको बोलते थे, जो बलि जहाँ चढ़ाई जाती है, जहाँ गर्दन काटी जाती है जानवरों की, उसको बोलते हैं ऑल्टर. ठीक है. सो द फ्रेज इज गुड एंड एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ राइटर रिगार्डिंग द इशू वेरी वेल. सेक्रीफाइसिंग द ट्राइबल वुमेन्स राइट्स एट द ऑल्टर ऑफ मेल ईगो, ये याद रखना. देन प्रिज्म ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब होता है पर्सपेक्टिव की. बेसिकली बहुत प्रिज्म समझते ही हो गए आप, जिसमें से 7 रंग फिल्टर होकर आ जाते हैं. ठीक है. देन डेथ ब्लो. डेथ ब्लो का मतलब होता है किल एंड इट इज़ अ लास्ट थिंग, मतलब ये बिल्कुल मार देना जिसको बोलते हैं. ठीक है. कूडेग्राह जिसको बोला जाता है. देन प्रिकेरियस का मतलब होता है बहुत ही, जिसको मतलब उसकी ज़िंदगी एक धागे से लटक रही है, मतलब इतना कोमा में जा चुका है, कभी भी मर सकता है, उसको बोलते हैं प्रिकेरियस पोजीशन. इसको ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिलस पोजीशन, ऑल्सो कॉल्ड एज डेंजरस पोजीशन, शेकी पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट चीट इन द यूपीएससी एग्जाम, दैट कुड पुट यू इन अ प्रिकेरियस पोजीशन. पकड़े गए तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा. देन ऑब्सेक्यूअस. सो बेसिकली इसको बोलते हैं चाटना जिसको बोलते हैं. ठीक है. फ्लैटरी, सर्विलिटी. ठीक है. अटेम्प्टिंग टू विन फेवर बाय फ्लैटरी और सर्विलिटी, इट्स कॉल्ड एज ऑब्सेक्यूअस. ठीक है. इंडियन कल्चर में काफ़ी प्रेवलेंट है अनफॉर्चुनेटली. सबमिसिव. देन यू हैव टंग इन चीक. टंग इन चीक का मतलब होता है क्लेवरली, अम्यूजिंग या ह्यूमरस. किसी ने कमेंट पास कर दिया उसको बोलते हैं टंग इन चीक कमेंट. रिलिंक्विश का मतलब होता है गौतम बुद्धा ने अपना राजपाट रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, इसको बोला जाता है रिलिंक्विश. रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप. Soldiers are not supposed to relinquish their post even in the face of bullets and adversity. ठीक है. Then you have protracted. Protracted का मतलब होता है prolonged, बहुत लंबे समय तक जो चलेंगी. ठीक है. For example, India and Pakistan are still in protracted negotiations over Jammu and Kashmir issue. Then you have dilapidated. Dilapidated का मतलब होता है कुछ टूट गया, कुछ क्रम्बल हो गया. कुछ यूजुअली ब्रिजेस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है. सो रेलवे ब्रिज इज अबाउट टू कोलैप्स. डिरिलिक्ट हो गया, ब्रोक डाउन, डैमेज, क्रम्बलिंग, डायलिपेटेड ब्रिज, डायलिपेटेड बिल्डिंग, एक्सेट्रा. देन यू हैव वेरासिटी. वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस. फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय एनोनिमस पर्सन. द वेरासिटी ऑफ इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड और कैन नॉट बी जस्टिफाइड और कैन नॉट बी वेरीफाइड. ठीक है. बेसिकली ट्रुथफुलनेस. प्रैक्सिस का मतलब होता है प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, इस्लामिक प्रैक्टिस ऑफ नमाज, एक्सेट्रा. यूनैनिमिटी का मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, कि सब एग्री कर रहे हैं. देन यू हैव एक्सटर्मिनेशन. इसका मतलब होता है मास किलिंग, एनाइलेशन, सबको एक साथ मार दिया गया है. हॉलोकास्ट जो टर्म है वो अब सबके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर 2 में जो मास मर्डर हुआ था जूस का, उसके लिए यूज़ कर रहे थे. एक्सटर्मिनेशन, हॉलोकास्ट, एक्सेट्रा. देन यू हैव स्लॉटर हाउस, जिसको एबेटॉयर भी बोलते हैं. Basically place where animals are butchered like buffaloes for meat production, chicken, etc. So that is called as slaughterhouse, lamb, etc. ठीक है. So slaughterhouse और abattoir. Then you have deja vu. Deja vu का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पहले भी आपको लगे. कई बार आप जाते हो, कई बार होता है अपने साथ, महीने में 2-3 बार तो सबके साथ होता है. फीलिंग लाइक द एक्सपीरियंस हैज ऑलरेडी अकर्ड बिफोर. टैबलॉइड का मतलब होता है जो सस्ते से न्यूज़पेपर होते हैं, जो सेंसेशनल जर्नलिज्म होते हैं, कि उसने वैसे कपड़े पहन लिए, उसके साथ वो चल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बेसिकली सनसनीखेज न्यूज़ चैनल या मीडिया प्रेस, उनको टैबलॉइड बोलते हैं. इवोकेशन का मतलब होता है कि किसी ने किसी को ललकारा, कॉलिंग अप, स्टिमुलेटिंग. ठीक है. जैसे सुभाष चंद्र बोस ललकार रहे हैं लोगों को. ग्रेटिटुअस का मतलब होता है अननेसेसरी एंड अनवांटेड, कि मतलब जो बेकार में फालतू की बात होती है. अननेसेसरी एंड अनवांटेड या अनकॉल्ड फॉर कमेंट, ग्रेटिटुअस कमेंट्स. एंड फाइनली यू हैव एक्सपीडिशियस. इसका मतलब होता है स्पीड और एफिशिएंसी के साथ बहुत ही तेजी से काम कर रहा है. और फास्टिडियस का मतलब होता है गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल. आई होप यू लाइक दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. डू शेयर इट. हैव एन ऑसम डे.